बेटे 19th question, in an entrance test there is graded on the basis of two examination. The probability of a randomly chosen student passing the first examination is 0.8. ਜੋ ਗ੍ਰੇਡ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੋ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੇਸ ਮੰਨ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਰਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ 0.8. The probability of passing the second examination is 0.7. दूसरे एग्जाम ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ probability 0.7. The probability of passing at least one of them is 0.95. ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪਾਸ ਕਰ ਲੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਕਰ ਲੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਨੋਂ ਕਰ ਲੇ. ਐਟ ਲੀਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੱਕ ਜਾਣਾ. ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਟ ਲੀਸਟ ਵਰਡ ਵਰਤਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. What is the probability of passing both? तो दोनों ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ probability ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ. ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ. ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ. ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੈ. ਇਵੈਂਟ A ਲੈ ਲਿਆ the student passes the first examination that is probability is 0.8. Event B, the student passes the second examination. It means probability B is equal to 0.7. The student passes at least one exam. It means probability A union B is equal to 0.95. तो हुण तुसीं इहनूं easily solve कर सकते हो. यूनियन है A है B है तो इंटरसेक्शन असीं फाइंड आउट करनी है. 20th question. The probability that a student will pass the final examination in both English and Hindi is 0.5. फाइनल ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪਾਸ ਕਰੇ ਉਹਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇਤੀ 0.5 ਐਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਪਾਸਿੰਗ ਨਾਈਦਰ ਇਜ਼ 0.1 ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ 0.1. ਇਫ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਪਾਸਿੰਗ ਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ 0.7. इंग्लिश ते हिंदी की गल करिए इंग्लिश की प्रोबेबिलिटी देती 0.75 क्वालीफाई करन दी. वट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द हिंदी एग्जामिनेशन तो हिंदी एग्जामिनेशन की प्रोबेबिलिटी पास करन दी कितनी होगी. दो एग्जाम्स की गल कर रहे हैं तो असीं इहनूं ईवेंट्स का नाम दिन्ने आ. क्वेश्चन नंबर 20th. ईवेंट A, द स्टूडेंट passes English examination. Event B, the student passes Hindi examination. So गिवन की है प्रोबेबिलिटी द स्टूडेंट पासिस बोथ एग्जामिनेशन. बोथ एग्जाम लिख दिने दैट इज प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B 0.5. द स्टूडेंट passes no exam. दोनों चो कोई भी पास नहीं करता. इट मीन्स प्रोबेबिलिटी A बार इंटरसेक्शन B बार इज इक्वल टू 0.1. तो इत्थों हुण तुसीं ईजीली फाइंड आउट कर सकते हो A बार इंटरसेक्शन B बार नूं किवें लिख सकते हो A यूनियन B होल बार. इट मीन्स 1 माइनस प्रोबेबिलिटी A यूनियन बार. तो बेटा इनू असी लिख सकते हैं 0.1 1 माइनस प्रोबेबिलिटी A यूनियन बार. प्रोबेबिलिटी A यूनियन बार इज इक्वल टू 1 माइनस 0.1 दैट इज 0.9. 0.9 लिख लो या फिर 0.90 भी लिख सकते हो. फर्स्ट एग्जाम नू पास करन दी इंग्लिश नू पास करन दी प्रोबेबिलिटी कितनी दिती हुई है. प्रोबेबिलिटी द स्टूडेंट passes English exam is equal to 0.75.
मतलब प्रोबेबिलिटी ए 0.75। तो हुण अपने कोले हिंदी की असी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। फार्मूला अपने कोले यूनीअन का है, प्रोबेबिलिटी ए यूनीअन बी, प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनीअन बी 0.9, ए प्रोबेबिलिटी ए 0.75, प्रोबेबिलिटी बी असी फाइंड आउट करनी है इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0.5। इनू थोड़ा ईजी करन दे लई इनू ऐ भी लिखा जा सकता है 0.90, डेसीमल तो बाद 2 डिजिट्स। तो 0.75 माइनस 0.50 कितना आ गया 0.25। 0.25 नो अगर असी माइनस कर दिए 0.90 माइनस 0.25 इट बिकम्स probability B is equal to 0.65. That is our required answer. Beta 21st question. In a class of 60 students, 30 opted for NCC, 32 opted for NSS and 24 opted for both NCC and NSS. क्लास दे टोटल 60 बच्चे है, 30 को ले NCC, 32 को ले NSS ते 24 को ले दोनों ही है। If one of these students is selected at random, find the probability। तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिते हुए हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 60, देयरफॉर NS सैंपल स्पेस आ गया 60 स्टूडेंट्स का। इवेंट ए द स्टूडेंट्स ऑप्टेड फॉर NCC, that is NA is equal to 30, probability A is equal to NA by NS, 30 by 60. Event B, the students opted for NSS, that is NB is equal to 32, probability B कितनी आ गई फिर NB by NS, 32 by 60. और event A intersection B, the student opted for both NCC and NSS, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किन्ने दिते हुए हैं 24। तो प्रोबेबिलिटी किवें फाइंड आउट करांगे, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन NS, दैट इज 24 by 60। तो फर्स्ट ऑप्शन है द स्टूडेंट्स ऑप्टेड फॉर NCC और NSS, मतलब असी फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी A यूनियन B। तो फार्मूला प्रोबेबिलिटी A प्लस प्रोबेबिलिटी B माइनस प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B। 30 by 60 प्लस 32 by 60 माइनस 24 by 60। LCM 60, 30 प्लस 32 माइनस 24, 62 विचों 24 माइनस करो तो इट बिकम्स 38 by 60। कट दो 2 दे टेबल ते तो ये कितना आ जाऊगा 19 by 30। सेकंड पार्ट, द स्टूडेंट्स हैज ऑप्टेड नाइदर NCC नॉर NSS, दोनों विचों कुछ भी नहीं है। तो वही मैथड किवें डी मॉर्गन ला लगाने आ, A यूनियन B होल कंप्लीमेंट, it means 1 minus probability A union B, 1 minus 19 by 30, LCM law 30, 30 minus 19 it becomes 11 by 30। थर्ड है अपने कोले द स्टूडेंट्स ऑप्टेड NSS बट नॉट NCC, NSS ਲਈ ਹੋਵੇ ਪਰ NCC ਨਾ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ NSS ਲਈ ਅਸੀਂ यूज ਕੀਤਾ ਸੀ इवेंट B। सो ओनली भी कह सकते हो इनू इवेंट B इज इक्वल टू की आ गया, इनू इस तरह भी लिख सकते हैं बेटा भी प्रोबेबिलिटी B माइनस A और प्रोबेबिलिटी B इंटरसेक्शन A कंप्लीमेंट, दोनों चो जिस तरह मर्जी लिख लो। की फार्मूला सी ਇਹਦਾ प्रोबेबिलिटी B माइनस प्रोबेबिलिटी B इंटरसेक्शन A। Probability B is equal to 32 by 60 and intersection is 24 by 60. It becomes 8 by 60, कट के कितना आ गया 4 दे टेबल ते कैंसल हो गया 2 by 50।